And what is the norm of gamma dot t? This is simply square root of a square sin square t, a square sin square t plus a square cos square t, right? And this is equal to a. This is equal to a, right? So now what is your s function here? What is s? So if you want to find s, you have to integrate this differential equation. So you will get this s is equal to at plus some constant, maybe you can say this c, right? अब यहाँ पे आप कुछ अपना इनिशियल कंडीशन लगा सकते हैं. आप ये मान लिया जाए कि जो हमारा कर्व है वो हम जो आर्क लेंथ मेजर जो है वो कहाँ से कर रहे हैं. तो सपोज यू स्टार्ट मेजरिंग आर्क लेंथ फ्रॉम द पॉइंट t इज इक्वल टू 0. यहाँ से अगर आप आर्क लेंथ मेजर करना शुरू कर रहे हैं तो सपोज एट t इज इक्वल टू 0, राइट, और आर्क लेंथ इज इक्वल टू 0. अगर मान लिया जाए कि हम यहाँ से t इज इक्वल टू 0 से आर्क लेंथ मेजर करना शुरू कर रहे हैं, तो जब हम t के पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा आर्क लेंथ पॉजिटिव होगा, और जब t के, ये मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 है, सो इफ यू मूव in this positive direction our arc length is positive, and when we move in negative direction our arc length is negative, right? So suppose this is our initial condition, our s become at, right? s becomes at. तो ये हमारा एक फंक्शन है s is equal to at, right? तो आप देख सकते हैं कि जब t पूरे रियल लाइन पे होगा, when t varies from minus infinity to infinity, s also varies from minus infinity to infinity. तो इस s का जो रेंज होगा, that range set must be minus infinity to infinity. So the range of this s set is also minus infinity to infinity, or the whole real line, right? Now what is its inverse function? What is inverse? Basically your aim is to find the inverse function of this function s, right? And that ensure from the inverse function theorem. But here it is very trivial because it's just a linear function. So this t, you can find this t in terms of s, that is t is equal to s upon a, right? So when you substitute, so this is actually your phi. This is actually your phi. This is your phi function, right? So when you put in terms of s in this parameter, in this equation gamma, you will get another curve gamma tilde. So basically your gamma tilde is nothing but gamma composed with this function phi, right? So when you put this gamma t tilde, you will get, or you can write gamma tilde. So generally when you write parameter as arc length parameter, we write in place of t tilde simply s, right? s as the arc length parameter. तो हम जब आर्क लेंथ पैरामीटर की बात करते हैं तो उस पैरामीटर को s लिख सकते हैं. तो गामा टिल्डा s is simply this gamma composed with phi s, right? But phi s is just s upon a. This is your phi s. Phi s. So phi s is s upon a. So this is gamma s upon a. So you just put here in place of t, you just put s upon a. So you will get this a cos s upon a and a sin s upon a. So this is the reparameterization of the circle, which is actually arc length parameterization. This is the arc length parameterization. Is it okay to everybody? Now you can see that it is parameterized by arc length. It is unit speed actually curve. So if you now calculate the speed of the curve, so gamma tilde dot s, this turns out to be simply minus sin s upon a will be cancelled out, and similarly cosine s upon a, and when you will take the norm of this quantity, you will get 1. So therefore this is unit speed curve. Is it okay to everybody? Yes sir. Yes sir. कोई समस्या तो किसी को नहीं? देखिए सर्किल हमेशा जो है वो ये इज एक्चुअली मदर ऑफ सेवरल ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट. तो आप सर्किल को अच्छे से समझेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को आप इसके आगे भी देखेंगे. मैं बहुत सारी जगह सर्किल के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा. तो आप इसको और भी कर्व्स के लिए सोच सकते हैं, बट सबसे जो सिंपलेस्ट कर्व जो सर्किल है वहाँ पे इसको समझना चाहिए कि अगर सर्किल का वो जो पहला
पैरामीटराइजेशन दिया गया था वो एक जनरल पैरामीटराइजेशन है, दैट इज नॉट आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन, बट दिस न्यू पैरामीटराइजेशन इज आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन। और जब भी आपको निकालना होगा तो ये प्रोसेस आप अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहले आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे ds by dt, या आर्क लेंथ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल आप निकालेंगे। फिर आप इस इनिशियल कंडीशन को रख करके और आप s की वैल्यू t के टर्म्स में निकालेंगे, और फिर यहाँ पे आप जिस प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकें उस प्रोसेस की मदद से, जो कि ऑलरेडी आपके पास थ्योरम यही कहता है कि अगर इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 नहीं है तो इनवर्स फंक्शन थ्योरम इंश्योर करेगा कि इसका इनवर्स फंक्शन भी आपको मिल जाएगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और चूंकि ये जो आर्क लेंथ फंक्शन है वो इंजेक्टिव फंक्शन है, इसलिए पूरे डोमेन में मिलेगा। एंड दैट हेल्प you to find this function phi, which is the inverse of this function, that is the value of t in terms of s। और फिर इस फंक्शन को गामा के साथ कंपोज करके हम एक नया जो कर्व लिखते हैं, that is the reparameterization of the gamma, and that is actually arc length parameterization। Let us take another example। या अब मैं इसको आप लोगों के लिए एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। तो ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज आपके किताब में दिया गया है, लेकिन एक एग्जाम्पल में दिया गया है जिसको आप लोग ट्राई करेंगे। सो सपोज दिस गामा गामा इज ए कर्व So gamma is a curve from its domain is not given here, but yeah, it's supposed to be the whole real line, right? So from R to R2 such that this gamma t is equal to this e to the power t cos t and e to the power t sin t. So now suppose this arc length function s is in such a way that it starts from the point 1 0, that is s is equal to 0 when your point p is 1 0, its point p is 1 0। तो जो भी एक कर्व है 1 0 पॉइंट इस पे होगा। in particular if you put t is equal to 0, so it means for t is equal to 0, for t is equal to 0 this term is 0 and this term is 1। तो इसका मतलब ये है कि आप ये इनिशियल कंडीशन रख सकते हैं, t is equal to 0, s is equal to 0। तो इसकी मदद से आप s की वैल्यू t के टर्म्स में निकालिए एज ए फंक्शन ऑफ t, एंड you can see that this is a regular curve, that is its speed is not equal to 0, and therefore this ds by dt is also not equal to 0, and therefore by inverse function theorem you can calculate t in terms of s, t as a function of s, and that is actually your phi s, and then you can find this gamma tilde, which is the composition of this gamma with phi, and you can find the this logarithmic spiral which is parameterized by arc length as follows. This gamma tilde s as you must calculate on your own. This is s upon square root of 2 plus 1 and cosine and log s upon square root of 2 plus 1 and comma, this is the first coordinate, s upon square root of 2 plus 1 and sine log s upon square root of 2 plus 1. Yeah. So this is actually the reparameterization of this curve gamma, which is parameterized by arc length. Is it okay to everybody?
Yes, sir. Yeah. लेकिन जैसा कि हमने बताया आपको, ये तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पे एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट ये पैरामीटराइजेशन निकालना बहुत, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर ये फंक्शन एस दिया हुआ है टी के टर्म में, तो कैसे आप फाई निकालेंगे कि it is invertible. But what is the inverse? That is really a very difficult problem. In fact, such kind of integral is called elliptic integral. This is called elliptic integral. Elliptic integral. Elliptic integral. तो कई बार जैसा कि आप जानते हैं, और भी मैथमेटिक्स के कई ब्रांचेज में ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि थियोरेटिकली तो हम कहते हैं कि हाँ साहब इसका सलूशन होगा, लेकिन इसका सलूशन जब निकालने की बात आती है तो कई बार बहुत मुश्किल होता है, तो हम उसको न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन वगैरह से फिर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में से है, जहाँ पे कि आप पहले तो एस का ही मान टी के रूप में जब निकालेंगे तो बहुत सारे एक्सपोनेंशियल अरिथमेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह आपको मिले, तो कई बार आप जो नोन फंक्शंस हैं उनके टर्म्स में आप इनवर्स नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ भी वही होगा कि आप नहीं निकाल पाएंगे। थ्योरेटिकली तो आप कहते हैं कि हाँ साहब इसको आर्कलेन से पैरामीटराइज हम कर सकते हैं, किया जा सकता है, बट व्हाट इज द पैरामीटराइजेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन सम केसेस। या ओके, तो कुछ और इसमें कर्व्स हैं आपके बुक में दिए गए हैं जिनका आप लोग रीपैरामीटराइजेशन निकालेंगे। सर तो ऐसे एग्जांपल्स को कैसे सॉल्व करेंगे फिर? नहीं, मैंने बताया कि जैसे इंटीग्रल भी तो आप लोग जब इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं तो वही इंटीग्रेशन आपके एग्जाम में आता है या बताया जाता है जो इंटीग्रेबल हो, जो जिसका इंटीग्रल किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी फंक्शन दे दिया जाएगा तो आप कर लेंगे, राइट? ठीक है, यद्यपि वो ऑलरेडी जो कंडीशंस हैं, अगर आप इनिशियल वैल्यू थ्योरम अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो आपको पता है कि अगर सर्टेन कंडीशन को आपका फंक्शन अगर सेटिस्फाई करता है, अगर मान लीजिए कि सबसे बेहतरीन कंडीशन स्मूथ होता है, अगर स्मूथ हो जाए तो ठीक है, सब कुछ लिपस्टिक वगैरह कंडीशन सब सेटिस्फाई करेगा। अगर स्मूथ फंक्शन है तो वो इंटीग्रेबल होना चाहिए, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये थ्योरेटिकली ही बात सही है, हम प्रैक्टिकल प्लेन पे सॉल्व करना कई बार ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, और उसके लिए फिर बहुत सारे तरीके आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम लोग सीरीज सोल्यूशन निकालते हैं, फिर बहुत सारे तरह के सॉल्यूशंस अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ये मैथमेटिक्स का एक अलग ब्रांच है जिसमें हम सॉल्यूशंस को जब एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो उनको हम अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ नोन फंक्शन इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन t in terms of s, राइट? तो ये एक वैसा ही एग्जांपल है जैसा कि आपको कोई टिपिकल सा इंटीग्रल दे दिया जाए और कहा जाए आप सॉल्व करिए। तो हो सकता है कि आप कुछ थ्योरी लगा के ये प्रूफ कर सकें कि हाँ यस दिस इंटीग्रल इज इंटीग्रेबल, दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, बट व्हाट इज द इंटीग्रल इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। समटाइम्स, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन केवल एक मैंने ऐसा एग्जांपल आपको दिखाया जहां पे कि हम ये कहने में सक्षम समर्थ नहीं है कि हाँ ये इसका इनवर्स फंक्शन क्या है, राइट? यस सर। ओके, so after this
अब इसके बाद जो है हम फोकस अपना करेंगे कि ये क्यों जो आर्क लेंथ पैरामीटराइज्ड कर्व की बात हम कर रहे हैं, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट दैट वी स्पेंड about 3 or 4 lectures on this arc length parameterization. So we'll see in particular for plane curves. तो इसके बाद हम प्लेन कर्व की ज्योमेट्री स्टडी करना चाहेंगे, फिर इसके बाद हम लोग स्पेस कर्व पे आएंगे। तो प्लेन कर्व, तो यहाँ एक हम नोशन डिफाइन करना चाहेंगे जो कि उस कर्व के हर पॉइंट से एसोसिएटेड रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द नोशन ऑफ कर्वेचर। द नोशन ऑफ कर्वेचर। तो व्हाट इज कर्वेचर? तो कर्वेचर जो है नॉर्मली जो एक रफ आइडिया हमारे पास है वो ये है कि अगर कोई कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है, तो ये ध्यान देंगे कि नॉर्मली आप इंग्लिश लिटरेचर का किताब पढ़ेंगे तो स्ट्रेट और कर्व ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स दिखता है कि हाँ कोई स्ट्रेट है तो कर्व्ड तो नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है। दिस इज ऑल्सो एक कर्व, इसको हम पैरामीटराइज कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो ए कर्व, राइट? बट फॉर दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो प्रॉपर्टी है कर्वेचर की, इट इज नॉट कर्व्ड एट ऑल। दिस इज ए कर्व बट इट इज नॉट कर्व्ड एट ऑल, एंड देयरफॉर इट्स कर्व। फॉर दिस कर्व यू कैन एसोसिएट ए नंबर ऑन रियल लाइन। एक रियल लाइन पे आप एक नंबर एसोसिएट कर सकते हैं, एंड दैट नंबर यू कैन असाइन एज 0। मतलब ये कोई बिल्कुल ही कर्व नहीं है, इसके हर पॉइंट पे इसका कर्वेचर जो है वो 0 है। सो फॉर दिस कर्व कर्वेचर इज 0। और जो दूसरा आइडिया आपके पास है कर्वेचर नोशन को डिफाइन करने का, वो ये है कि ये जो सर्कल कर्व्ड है, सर्कल जो कि एक कर्व है, ये हर पॉइंट पे इक्वली कर्व्ड है। तो द सर्कल इज इक्वली कर्व्ड एट ईच पॉइंट. दिस इज द second feedback you have in your mind, that circle is equally curved and straight line is not curved at all. So and therefore you can associate a number for this curve, and that number you can associate in fact for each point of the curve. हर बिंदु पे आप देखेंगे तो ये straight line जो है वो उसको आप 0 नंबर से एसोसिएट कर सकते हैं. सो दिस कर्व इज नॉट कर्व्ड एट ऑल. एंड फॉर सर्कल आल्सो, एट ईच पॉइंट ऑफ सर्कल यू कैन एसोसिएट ए नंबर बिकॉज इट इज इक्वली कर्व्ड. तो वो जो इक्वल नंबर है, यू कैन एसोसिएट सम नंबर, बट दैट नंबर you associate to each point of the curve. But you take another circle of larger radius, it's just a feeling that is it less curved than this सर्कल ऑफ स्मॉलर रेडियस, राइट? तो इसका मतलब ये जो इसका जो कर्वेचर होगा वो थोड़ा कम कर्वेचर होगा. अगर एक तीसरा सर्कल ले लीजिए जिसका रेडियस और भी ज्यादा है, तो ये और भी कम है. जितना आप रेडियस बढ़ाते जाइएगा, ये तो बात सही है कि उस सर्कल के हर पॉइंट पे इक्वली कर्व्ड है, इक्वली सेम सिमिलर कर्व्ड आप यू कैन से. सो देयरफॉर यू कैन एसोसिएट ए नंबर एट ईच पॉइंट ऑफ द सर्कल, बट द नंबर एसोसिएटेड टू दिस सर्कल should be smaller than the number associated to this circle, and is smaller than the number associated to this circle, etc. and so on. So these are some feedbacks you have to define the notion of curvature to a plane curve. Now I'm going to define, and we'll see that it's actually going to be true for these feedbacks. So suppose, now we assume that gamma is a curve. Maybe you can define from this interval alpha beta to R2 and is unit speed. So is unit speed curve. Unit speed. तो अब इसके बाद जब भी हम चर्चा करेंगे तो हम यूनिट स्पीड कर्व की चर्चा करेंगे, क्योंकि आप देखिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है. यूनिट स्पीड कर्व, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है यूनिट स्पीड कर्व का,
वो ये है कि जो एक हमने प्रोपोजिशन प्रूफ किया था, विल डिस्कस दैट. सो एंड सपोज दिस t is gamma dot. Gamma dot is the tangent vector to the curve. तो ये अगर आपका मान लीजिए कि कोई कर्व गामा है, and at some point here this is the tangent vector. So you may just denote this gamma dot by this t. So t is the tangent vector to the curve at the point gamma t. ये गामा टी पॉइंट पे, ये गामा टी पॉइंट है, गामा टी पॉइंट पे ये टेंजेंट वेक्टर है गामा डॉट टी, राइट. व्हेन यू फिक्स एट सम पॉइंट टी, इट बिकम्स एक्चुअली this tangent vector. Otherwise it's actually tangent vector as a function. तो किसी भी पॉइंट पे आप एसोसिएट करिएगा तो उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एसोसिएट करिएगा गामा डॉट, तो वहां पे आपको टेंजेंट वेक्टर दे देगा. दूसरी जो चीज है वो ये है कि जिस प्लेन में हम ये कर्व दिया हुआ है उस प्लेन में हम एक ओरिएंटेशन फिक्स कर लेते हैं. ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि हम एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन को हम हमेशा पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहेंगे. तो वी कॉल दिस एज अ पॉजिटिव ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि अगर इस R2 को हम एज ए वेक्टर स्पेस ट्रीट करें, सो एवरी वेक्टर स्पेस, इनफैक्ट वेक्टर स्पेस से भी थोड़ा ज्यादा हमें मानना होगा. हम एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हम लेना चाहते हैं. तो मान लीजिए कि हम इस पे, जैसा कि शुरू में हमने बताया था, एक इस पे नेचुरल इनर प्रोडक्ट स्ट्रक्चर है. सो इट हैज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. So if you take orthonormal basis E1 as 1 0 and E2 as 0 1, so you take this as your first vector and this as your second vector. So from first vector to second vector, right? First vector से second vector की तरफ ये जो orientation है इसको हम positive orientation कहेंगे. अगर देखें जब वेक्टर स्पेस ट्रीट कर रहे हैं तो आप E2 को पहला और E1 को दूसरा वेक्टर मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी एक बेसिस होगा. That is also a basis. But here I am taking oriented basis. Oriented basis means this first place is always taken as the first vector, and at second place will take this vector along your y-axis, second vector. ठीक है? So this is called oriented basis. Right. And whenever suppose at some point here you take a vector, and suppose someone says that construct a basis at this point so that it is similarly oriented as your given basis at the origin. What will you do? So you take this given vector, say t, as the first vector, and you just orient this vector, you just rotate this vector 90 degree in anti-clockwise direction, and you may call this another vector, say as n, in such a way that this orientation of Tn is same as the orientation of E1 E2. अगर E1 E2 का ओरिएंटेशन इस T और N के ओरिएंटेशन के सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों बेसिस जो है वो सिमिलरली ओरिएंटेड और दे हैव सेम ओरिएंटेशन. तो सेम ओरिएंटेशन जब भी आपको निकालना होगा, एक वेक्टर अगर t दिया गया है तो उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम 90 डिग्री से रोटेट करेंगे, जो वेक्टर मिलेगा उसको अगर हम n कह दें तो ये t और n ये जो ओरिएंटेशन बनाएगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो दिए गए बेसिस का ओरिएंटेशन है. ओके. इसके बाद हमने देखा कि इस कर्व के हर पॉइंट पे एक टेंजेंट वेक्टर आपके पास है गामा डॉट. नाउ व्हाट अबाउट द नॉर्मल टू द कर्व? जैसा कि हमने बताया था, अब ये यूनिट स्पीड कर्व का यहाँ पे एडवांटेज आप ले सकते हैं. तो बिकॉज दिस गामा डॉट इज यूनिट स्पीड, राइट, its acceleration vector must be
along normal to the curve. Why? जैसा कि हमने बताया था आपको कि अगर ये यूनिट स्पीड कर्व है, इसका मतलब जो इसका नॉर्म है, दिस गामा डॉट norm is equal to 1, and therefore its square is also going to be 1. But the square of the norm is actually equal to the inner product gamma dot, which is equal to 1. And if you again differentiate this equation, you have this d by dt of gamma dot, which is equal to 0. And this implies this gamma dot inner product gamma double dot. ये लेबनीज प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन, तो बेसिकली विल गेट 2 times this quantity is equal to 0, and therefore this gamma double dot is going to be 0. So what it means? It means this gamma double dot either it is equal to 0 or gamma double dot is perpendicular to gamma dot, right? Because gamma dot is not equal to 0. Gamma dot जो है वो 0 के इक्वल नहीं है. It is unit speed curve. Gamma dot is not equal to 0. So either gamma double dot is equal to 0 or this gamma double dot, that is acceleration vector, is perpendicular to gamma dot, right? Now we assume that this gamma dot is not equal to 0. So this is our assumption. We assume that our curve is such that its acceleration vector is not equal to 0. We assume that its acceleration is not equal to 0. Then what happened? Then this gamma double dot acceleration must be normal, must be this perpendicular to gamma dot. इस गामा डॉट के परपेंडिकुलर होगा. अब हम यहाँ पे इस गामा डॉट के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ड्रॉ करना चाहते हैं जिसको हम कहेंगे नॉर्मल वेक्टर. बट दिस नॉर्मल वेक्टर, आप चाहें तो इसको भी नॉर्मल वेक्टर कह सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी दूसरे दिशा में नॉर्मल वेक्टर कह सकते हैं. लेकिन जैसा कि हमने बताया कि चूंकि हम इस प्लेन के ओरिएंटेशन को फिक्स कर चुके हैं, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन हमारा पॉजिटिव ओरिएंटेशन होगा, तो इस तरह से ये टी वेक्टर और ये एन वेक्टर इस तरह से हम चूज करेंगे कि एन को टी के द्वारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन से प्राप्त जो वेक्टर होगा, दैट इज ये हमारा जो है वो नॉर्मल वेक्टर होगा. सो यू जस्ट रिमेंबर दैट एन इज ऑब्टेन्ड बाय 90 degree rotation of your tangent vector through anti-clockwise direction. So this cannot be n. This cannot be n. So our n comes from the orientation of the plane. So remember this. Our n comes from the orientation of the plane. अगर हम पॉजिटिव ओरिएंटेशन की बात करेंगे तो हमारा n ये हो जाएगा, राइट? अगर नेगेटिव ओरिएंटेशन हम लेते हैं, अगर हम क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन को पॉजिटिव ओरिएंटेशन कहें तो हमारा n वेक्टर ये होगा. So we consider our normal vector in such a way that this Tn is positively oriented frame. So this n is actually a unit vector and is perpendicular to your gamma dot. तो यहाँ पे आप ध्यान दें, अब धीरे धीरे आप यूनिट स्पीड कर्व का महत्व समझेंगे कि अब हमको इस टेंजेंट वेक्टर के दिशा में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसके नॉर्म से हमको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. बिकॉज दिस gamma is unit speed curve, this tangent vector is already unit vector. The tangent vector is unit vector. You have to only rotate this tangent vector by a 90 degree and you will get the normal vector to the curve. So this Tn becomes a positively oriented frame. This is called positively oriented frame associated to each point of the curve. इस कर्व के हर पॉइंट पे आपको एक फ्रेम मिल जाएगा. एक टेंजेंट वेक्टर लीजिए और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करिए, आपको n मिल जाएगा. आप यहाँ पहुंच गए, यहाँ भी आप एक टेंजेंट वेक्टर ले लीजिए और नॉर्मल वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट करिए, आपको एक कह सकते हैं फ्रेम आपको मिलेगा. सो दिस फ्रेम इज एसोसिएटेड टू ईच पॉइंट ऑफ द कर्व. ओके, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये गामा डबल डॉट जो है वो गामा डॉट के परपेंडिकुलर है, और गामा डॉट के परपेंडिकुलर यानी टी के परपेंडिकुलर तो आपका n है.
So it means this gamma double dot must be some scalar multiple of this n, some scalar multiple of n, because n is unit vector. This gamma double dot may not be unit vector, right? So let us call this is equal to some scalar quantity, what is called k, and this k is actually called the curvature of the curve. This is called curvature of the curve. In fact, it is called signed curvature of the curve gamma at the point gamma t. Right? Is it clear to everybody what is called curvature? Yes, sir. Yeah. So this gamma double dot is equal to, because this gamma double dot is perpendicular to gamma dot, and we have chosen this n, which is always perpendicular to gamma dot, and n, the direction of n is fixed. This gamma dot, we don't know gamma double dot is whether in direction of n or it opposite to n. If it is in direction of n, अगर gamma double dot जो है n के दिशा में होगा, सॉरी n के पैरेलल होगा, लेकिन वो n की ही दिशा में होगा, ये कुछ हमें स्पष्ट नहीं हो रहा है. If gamma double dot is in direction of n, this curvature must be positive. But suppose gamma double dot is in opposite direction to n, ये भी तो हो सकता है. gamma double dot इसके, क्योंकि ये जो इनर प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब बस ये है कि ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. गामा डबल डॉट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू गामा डबल डॉट. तो अगर गामा डबल डॉट n की दिशा में है तो हम कहेंगे कि उसका कर्वेचर पॉजिटिव होगा, और अगर ये इसके अपोजिट है तो हम कहेंगे कर्वेचर नेगेटिव होगा. सो इन दिस वे यू सी दिस कर्वेचर ऑफ ए प्लेन कर्व may be positive and it may have negative sign. So I will just close by giving this example that when it is positive and when it is negative. For example, if you take your curve like this, suppose this is your curve, right? Maybe you can take your curve like this. Maybe you can take your curve like this. So suppose all these three curve, जो भी इसका इक्वेशन होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम केवल R2 में इन कर्व्स को समझना चाहते हैं. तो इसका कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें तो ये इसका टेंजेंट वेक्टर होगा, क्योंकि कर्व ओरिएंटेड है तो ये टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा. और अगर टेंजेंट वेक्टर आपको पता है तो नॉर्मल वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आप ले सकते हैं n. यहाँ पे अगर आप कर्व लें तो ये आपका टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा, और इससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप लें तो ये आपका हो जाएगा n. ये t हो गया, ये n हो गया. यहाँ पे अगर आप लें तो ये आपका टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा और ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा, राइट. अब यहाँ पे आप देखें कि ये आपका गामा कर्व है, ये गामा डॉट वेक्टर है. गामा डबल डॉट जो है वो किधर होगा? गामा डॉट जो है, गामा हर पॉइंट पे गामा डॉट, तो गामा डॉट जो है, गामा डबल डॉट is parallel to either it is along n or it is in opposite to n. गामा डबल डॉट या तो n के along होगा या n के अपोजिट डायरेक्शन में होगा. अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे गामा डबल डॉट क्या होगा? n के along होगा या n के अपोजिट होगा? यहाँ पे गामा डबल डॉट क्या होगा? सपोज दिस इज योर गामा. तो यहाँ आप देखें एक बहुत ही आसान सा तरीका है समझने का कि अगर गामा जो है वो नॉर्मल की तरफ कर्व झुक रहा है, अगर कर्व जो है नॉर्मल तो फिक्स है, नॉर्मल तो वो चूंकि प्लेन के ओरिएंटेशन से आ रहा है तो नॉर्मल इसका फिक्स हो गया है, टेंजेंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से आपको नॉर्मल मिल जाएगा. तो अगर आपका गामा नॉर्मल की तरफ झुक रहा है, इसका मतलब जो टेंजेंट के रोटेट होने की जो गति है वो नॉर्मल के दिशा में है, एंड देयरफॉर योर गामा डबल डॉट विल बी in direction of n, and in this case this curvature will be positive. In this case you see your curve is going far from the normal. ये नॉर्मल से दूर की तरफ, नॉर्मल की तरफ नहीं झुक रहा है, यानी जो इसका टेंजेंट है, जो गामा डॉट है, वो नॉर्मल से दूर होने की कोशिश कर रहा है. तो यहाँ पे गामा डबल डॉट n के अपोजिट होगा और यहाँ पे कर्वेचर आपका नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ भी अगर आप देखें तो जो टेंजेंट वेक्टर है
वो कर्व का जो टेंजेंट वेक्टर है या कर्व जो है वो नॉर्मल से दूर होने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ भी कर्वेचर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि कब आपके प्लेन कर्व का कर्वेचर पॉजिटिव होगा और कब आपका कर्वेचर नेगेटिव होगा। तो नेक्स्ट टर्न पे इस प्लेन कर्व के कुछ कर्वेचर से संबंधित कुछ और चीज़ों की हम चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम बताएंगे कि व्हाई दिस कर्वेचर इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी स्टडी कर्वेचर, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट we spend a lot of time on the curvature of a plane curve. So that we'll see on the next term. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.